everybody. तो कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग सब लोग बहुत बढ़िया हैं. दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, mentor and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं. अब बारी आ चुकी है कि मैं आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, जहां पे मैं आपको बताऊं कि व्हेन यू हैव डन ऑल योर वर्क, अब जब ऑडिट आएगा आपका, जब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कवर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट और वन ऑफ देम. इट कुड बी एंड और सिचुएशन, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि एज अ प्रोफेशनल, एज एन अकाउंटेंट, what is your role and how can you coordinate with the auditor, with the chartered accountant out there, how you can help that person for a smooth conduct of the audit, right? And anyhow we know that this is the management's responsibility कि हम जो हमारा external आ रहा है उसकी help करें so that a smooth conduct can take place, right? It can be held here. So that is why it is very important कि हम वेरियस ऑडिट्स के लिए हमें कैसे ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये हमें बात पता होनी चाहिए. फॉर टुडे सेशन, इनफैक्ट फॉर द नेक्स्ट 3 सेशंस हम लोग वेरियस ऑडिट्स उठाएंगे. उस ऑडिट को की एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसको लगेगा, कब कराना है, कौन करने आएगा वो ऑडिट, और उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो अभी से लेके नेक्स्ट 3 क्लासेस तक, लाइक इन टोटल 3 क्लासेस, हम लोग various types of audits and your coordination with the auditor for conducting a smooth audit is to be done. Okay, because we know कि एक जो भी ऑडिटर आपको क्लीन चिट देगा उसी के बेसिस पे आप आगे काम कर पाएंगे, राइट? उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी आंखें वहीं पर हैं. You know, the whole working is surrounded around these financial statements. So that is why it is very important. Plus it is a compliance करना ही करना है, right? It is not कि optional है कि हम कराना चाहें तो करा लें. No, it is a compliance, you have to do it. So we will be doing that for our sessions now. चलिए शुरू करते हैं and let's make it clear here that this is something that we will be doing in our practical life, and this is something जो हमारे लिए बहुत important है. Sometimes your job depends on this. Sometimes the way you work with the auditor actually tells your boss that how good you are at the work you're doing. So it is very important that you know what all things you have to do in order to conduct these audits in a smooth manner. Again you will think कि मुझे क्यों कराना ऑडिट? आपको ही कराना है ऑडिट. ये सारे ऑडिट्स अकाउंटेंट्स को ही कराने होते हैं. जो फाइनेंस फील्ड में प्रोफेशनल्स बैठे हैं उनको ही कराने होते हैं ये ऑडिट्स. सो इट इज़ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस इफ यू डूइंग दिस, यू नो कि मैंने काम तो करा ही है, राइट? जब मैंने काम करा ही है तो उसे डॉक्यूमेंटेशन मैंने करी हुई है. हाउ टू जस्ट टेल द ऑडिटर, या यू नो दिस वर्क हैज़ बीन डन and these are the documents, these are supporting evidence, I'm just providing you with it for a smooth conduct, right? This way your manager, your boss knows that you have done the work and you have done it so smoothly, so accurately that nothing is stopping the audit as well, right? So it is very important. चलिए आइए शुरू करते हैं. So we're talking about the auditor's coordination in income tax. ठीक है, जब इनकम टैक्स ऑडिट लगेगा आपका तो आपको क्या कोऑर्डिनेट करना है ऑडिटर के साथ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू नो कि टैक्स ऑडिट होता क्या है. आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि टैक्स ऑडिट क्या होता है. अब there are various types of audits that can take place in an organization, majorly consisting of tax audit, stats audit and GST audit. Tax audit that will be conducted under Income Tax Act. Then stats audit is conducted under Companies Act.
एंड GST ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर GST एक्ट, राइट। तो हमें तीनों एक्ट्स को लेके चलना है और तीनों एक्ट्स का ऑडिट कराना है। आई एम वेरी श्योर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे ये बहुत बहुत काम आएगा आपके। So be sure that you are giving your 100% to me right now, so that when I am giving you so much, you should actually grab from it. Give me your 100%. Okay? चलिए. So what is tax audit? An income tax audit refers to the examination of an individual's or entity's financial records. Financial records के बारे में हम बात कर रहे हैं. एग्जामिनेशन हो गई, एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू एंश्योर दैट द इनकम डिडक्शन एंड टैक्स रिपोर्टेड आर एक्यूरेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, उस पर कुछ डिडक्शंस ले रहे हो एंड देन यू आर पेइंग दोज टैक्सेस ऑन इट, राइट। अंडर इनकम टैक्स ऑडिट हम लोग बस यही चेक करना चाहते हैं, कि जो आपने इनकम डिस्क्लोज करी है, जो डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं, जो टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, दोज आर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वी जस्ट वांट टू चेक दैट। एंड हाउ वुड वी चेक दिस? ये इनकम डिडक्शन टैक्सेस कैसे चेक करेंगे हम? हमें आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, राइट? So I hope I'm making sense to you all. All we are trying to do is we want to examine the entities or the individuals' financial records so that हम ensure कर पाएं that the income and deductions that you want to take are as per the provisions of Income Tax Act. अब Companies Act कुछ और बोल रहा है, Income Tax Act कुछ और बोल रहा है। For example, depreciation ले लो आप। Companies Act में कुछ और लिखा है और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और लिखा है, राइट? दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन आउट देयर। तो इनकम टैक्स वाले चाह रहे हैं कि अगर आप हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देते हो तो आपका टैक्स ऑडिट कराया जाएगा। उस टैक्स ऑडिट में हम चेक करेंगे आपके रिकॉर्ड्स और हम देखेंगे कि जितनी आप इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो और जितने आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो वो दोनों एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैं या नहीं है, ठीक है? दैट्स इट, दैट इज द होल पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट। So यही लिखा है यहाँ पर, it refers to the examination of financial records to ensure that the income and deduction and taxes reported are accurate as per the provisions of Income Tax Act 1961, right? Now, a tax audit is conducted under section 44AB of Income Tax Act. 44AB में होता है आपका टैक्स ऑडिट। इट इज कैरिड आउट बाय अ CA to verify the correctness of income and deduction declared by the taxpayer. Now, who's a CA? Now, I belong to the same background. I have the same background. तो हम लोगों का क्या होता है? CAs are basically professionals. We are professionals qualified in various aspects such as accounting, auditing, taxation, finance. Majorly हमारे यही सारे parts हैं and we are qualified to conduct audits throughout India, right? In various types of audits. So it's a professional degree. अब now this is a good job opportunity for you. If you are already accounting professional, it is a very 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 good opportunity for you because it is something which can first of all a lot of respect in the market, second of all good money. दोनों चीज़ें जो चाहिए होती हैं एक प्रोफेशन से वो दोनों चीज़ें एक CA को मिलती हैं. How it is done and how a CA the studies how they are conducted मैं आपको थोड़ा सा इसका glimpse दे देती हूँ. I guess that will help you. I think कोई सी भी job opportunity ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप हमारे से मिस हो जाए. You should be able to upgrade yourself, right? For that you need information. तो CA बनने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले तो सी इज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु होल्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इन अकाउंटिंग फिनेंस. और हमारी एक्सपर्टीज किस में है? ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग, फिनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटसेट्रा. हमारे को कौन दे रहा है ये डिग्री? हमें ये डिग्री दे रहा है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ओके, कितना कोर्स है मैम? ये कैसे पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है क्या? आफ्टर ग्रेजुएशन ही परस्यू कर सकते हैं क्या? नो, आप इसको आफ्टर 12th
कभी भी कर सकते हैं. After 12th, anytime you can join the CA course. You can join anytime. There are 3 levels in CA. There are 3 levels in CA course. ठीक है. First level is your foundation. You can give foundation just after your 12th. यहाँ पे क्राइटेरिया कि आप 12वीं पास होने चाहिए. आप 12वीं पास हैं, आप फाउंडेशन दे सकते हो. दैट इज फर्स्ट लेवल. आपका फर्स्ट लेवल पास हो गया. आपका आप सेकेंड लेवल दोगे. सेकेंड लेवल इज इंटरमीडिएट. इंटर भी बोलते हैं हम इसको. इंटरमीडिएट बोल लो, IPCC बोल लो, कुछ भी बोलो. इंटरमीडिएट है सेकेंड लेवल. इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप्स होते हैं आपके. हर ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. दैट इज टोटल 6 सब्जेक्ट्स. आपको 6 के 6 पास करने हैं. अगर एक ग्रुप में एक भी सब्जेक्ट फेल हो गया तो आप फेल हैं. आपको फिर से वो ग्रुप देना पड़ेगा. सो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स पास करने हैं एट द सेम गो. मतलब एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने चाहिए आप ऑन द 1 गो इटसेल्फ. ठीक है. देन द थर्ड लेवल इज योर फाइनल लेवल. फाइनल लेवल में आपको क्या करना है. फाइनल लेवल में भी अगेन 2 ग्रुप्स, ईच ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स और सेम क्राइटेरिया है. तो ओवरऑल 50% आने चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना चाहिए. ओवरऑल अगर मतलब ओवरऑल पास परसेंटेज इज 50%. कि अगर 100 आपका तो 3 सब्जेक्ट्स का मिला के कितने हो गए 300, तो आपको कितना चाहिए पास होने के लिए 150 प्लस सेकेंड. इसमें एक और शर्त है, एक और कंडीशन है दैट हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है. ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 60 आ गए, एक में 30 आ गए और एक और में 60 आ गए. 150 तो बन गए. 150 तो बन गए, बट आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो नो, यू कैन नॉट पास. इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास भी होना है. 40% यानी 40 नंबर इंडिविजुअल में आने ही चाहिए. प्लस ओवरऑल आपका 50% बनना चाहिए फॉर इंटर ऑल्सो फॉर फाइनल ऑल्सो. ये दोनों में क्राइटेरिया है. ठीक है. तो ये हो गया आपका CA. बहुत सारी फील्ड्स में आपको जॉब मिलती है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, FRM हो, चाहे अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो. ये तो बहुत बेसिक बातें हैं. मर्जर है. ठीक है. मर्जर एंड एक्विजिशन है. अमेजिंग फील्ड फॉर CAs. तो CAs have a very good career. Even you can opt for the same because it is something which if you are already in this field, तो इसी फील्ड को थोड़ा बस एनहांस करोगे. आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो why not upgrade yourself? So this is something you can do. Why I am telling you this? Because I feel हम सब लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को. So I belong to the same background, so I know how amazing of a course this is. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बात हो गई CAs की. कौन कंडक्ट कर रहा है टैक्स ऑडिट? देखो सिर्फ CA ही कर रहे हैं. CA के अलावा कोई नहीं कर सकता. तो एक काम तो ऐसा हो गया जो सिर्फ आपको मिलने वाला है. यानी बहुत बढ़िया काम है, सिर्फ आपको ही मिलता है, आप ही कर सकते हैं. यू कैन चार्ज गुड मनी फॉर दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है. Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं. आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ. फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स. 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा. थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स. एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग.
आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40 plus hours of comprehensive learning, affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे, साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000 प्लस अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर टुडे। आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। अब हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टैक्स ऑडिट, हमें देखना है कि किसको कराना है टैक्स ऑडिट। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स ऑडिट कराना है? ठीक है, तो इस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये यूजुअली सेम ही रहता है। मैंने एकदम लेटेस्ट उठाया है सो दैट यू नो कि आपके ऊपर है या नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो गया है, टर्नओवर यानी सेल्स, आपका टर्नओवर अगर 1 CR क्रॉस कर जाता है, 1 CR नहीं, एक्सीड्स 1 CR, मैंने इसलिए बोला 1 CR क्रॉस कर जाता है, सो द ऑडिट इज मैंडेटरी इन नेचर। आपको ऑडिट कराना ही करेगा। और आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्स नहीं ले रहे हो, शर्त यह है कि बस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपने अपने आप को एनरोल नहीं कराया हुआ है। अगर आपने अपने आप को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एनरोल कराया हुआ है, मतलब आपने बोला हुआ है कि भाई मैं पूरे साल जितना भी पैसा कमाऊं, आप मुझसे पहले से एक प्री डिफाइंड रेट है, फिक्स रेट है, उस पर मुझसे टैक्स ले लेना, ठीक है? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितने भी पैसे कमाऊं, आप मुझसे प्री डिफाइंड रेट है, एक फिक्स रेट है, उस रेट पे टैक्स ले लेना। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, राइट? तो दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्स। याद करो हमने जीएसटी में भी ऐसे कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी थी, ऐसा ही ये प्रिजम्पटिव टैक्स होता है, ठीक है? तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए एक्सीड कर दिया है आपका टर्नओवर और आप प्रिजम्पटिव टैक्स में नहीं हो, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो चुका है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर आपका बिजनेस है पर इस बिजनेस को आप प्रीडोमिनेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही करते हो, यानी कि ये हम, अब क्या हुआ, लोग ना बहुत पैसा चोरी करते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं अपने पास, बहुत ज्यादा कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, राइट? ऐसा होता है ना, टैक्स में बहुत ज्यादा, कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन, अभी बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं ऐसे बाहर कि एक्स जगह पे एक पान वाला है और उस पान वाले की इनकम 10 CR है और सारा का सारा कैश में होता है उसका ट्रांजैक्शन, किसी को पता ही नहीं है कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और बढ़िया काम चल रहा है, बट वो कुछ टैक्स नहीं दे रहा। सब कुछ, सारा का सारा ट्रांजैक्शन उसका कैश में हुआ है, क्योंकि दैट इज व्हाई। सो जस्ट टू मोटिवेट और पुश द businesses to go digital, to take predominantly take ऑनलाइन मनी, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करो, उसको पुश करने के लिए हमने बिजनेसेस को एक इंसेंटिव दिया। क्या था ये इंसेंटिव? कि अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे कम है, अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे कम है, तो हम आपको एक फायदा देते हैं कि ये जो लिमिट हमने दी थी ना टैक्स ऑडिट कराने की 1 CR, इसको इंक्रीज कर दो, हम तुमको ये सिर्फ 10 करोड़ की देते हैं लिमिट को। वी विल इंक्रीज योर टैक्स ऑडिट लिमिट फ्रॉम 1 CR टू 10 CR, यानी 10 करोड़ तक माफी है, टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है। अभी जनरली हमने जनरल प्रोविजन क्या पढ़ा कि अगर 1 करोड़ क्रॉस कर लिया तो टैक्स ऑडिट कराओ, राइट? अब जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं वो कहते हैं यार हमारा तो हो जाता है 1 CR क्रॉस, बट हमारे को इतना प्रॉफिट थोड़ी होता है। टैक्स ऑडिट कराना टीडियस अफेयर है, बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, यू नो, और कोई भी ऑडिट अपना कराना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात, राइट?
तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने उनको एक पुश दिया, उनको एक मोटिवेशन दी, ठीक है आप मत कराओ, अब 1 CR की जगह हम आपको लिमिट 10 CR दे देते हैं। अब तो खुश हो जाओगे तुम कि 1 CR पे मत कराना टैक्स ऑडिट। जब तुम 10 करोड़ क्रॉस कर जाओगे ना, अगर तुम 10 करोड़ कर जाओगे क्रॉस तो कराना अपना टैक्स ऑडिट गिवन। बट यहाँ एक शर्त है, यहाँ एक शर्त है कि अगर तुमने 5% या कम 5% या उससे कम कैश में डील करा, चाहे रिसिट्स करी हो चाहे पेमेंट्स करी हो, चाहे तुमने कैश लिया हो चाहे तुमने कैश दिया हो, अगर तुम्हारे टोटल टर्नओवर के वो 5% या उससे कम है तो हम तुमको एक पुश दे रहे हैं, हम तुमको एक एक्स्ट्रा हेड्सअप दे रहे हैं कि तुम्हारा ये 1 करोड़ की जगह हमने क्या कर दिया है 10 करोड़। ठीक है, सो यही लिखा है द एनहांस्ड लिमिट ऑफ 10 CR अप्लाइज ओनली इफ द कैश ट्रांजेक्शंस आर विद इन 5% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शंस। अगर टोटल ट्रांजेक्शन के सिर्फ और सिर्फ आज 5% या उससे कम ट्रांजेक्शन कैश में करोगे तो तुमको एक फायदा है, बाकी सब तुम ऑनलाइन करो तो उसकी ट्रैकिंग कर पा रहा है ना डिपार्टमेंट, जो भी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी मैं ट्रैकिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट जो भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रही है उसकी ट्रैकिंग करनी बहुत ईजी है। दैट इज वाई ये पुश दिया गया कि ये हमने एक्सीड कर दी 1 CR से 10 CR। ओके, अब अगर आप प्रोफेशनल्स यानी CAs हैं, आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, किसी भी प्रकार के आप आर्टिस्ट हैं, टीचर हैं, राइट, और आपकी ग्रॉस रिसिट्स मतलब आपकी सेल्स 50 लाख से ऊपर हो गई हैं, आप एक साल में 50 लाख से ऊपर सेल्स करते हो, ग्रॉस रिसिट्स आपकी 50 लाख से ऊपर हो गई हैं, तो आपको भी मैंडेटरी है टैक्स कराना। देखो बिजनेस था, जनरल प्रोविजन क्या हो गया बिजनेस के लिए 1 CR। आप प्रीडोमिनेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि आपकी कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ 5% है, 5% या उससे कम, तो आपके लिए टैक्स लिमिट क्या हो गई 10 CR टैक्स ऑडिट लिमिट। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये लिमिट है 50 लाख। क्यों 50 लाख? इनके लिए 50 लाख क्यों रखी? क्योंकि इनके खर्चे नहीं है ना, जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके खर्चे भी तो अकॉर्डिंगली कम है ना, इनपुट सर्विस तो कुछ है ही नहीं, इतनी मेजरली इनपुट तो कुछ है ही नहीं, आपकी स्किल ही आपका इनपुट है, राइट। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स चूज कर लेते हो, इफ यू चूज प्रिजम्पटिव टैक्स अंडर सेक्शन 44 AD, मतलब आप बोल रहे हो कि मुझसे भाई एक फिक्स्ड अमाउंट पे, पहले से ही मैं बता रहा हूं, एक फिक्स्ड परसेंटेज पे मुझसे टैक्स ले लिया करना, तो उसको बोलूंगी कि मैं आपने चूज कर लिया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, आपने चूज कर लिया है, सेम जैसे हम GST में करते थे। और आप एक बिजनेस पर्सन है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है, या फिर इनकम डिक्लेयर्ड इज लेस देन 8% ऑफ टर्नओवर एंड टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, या फिर आप कह रहे हो कि जो मैंने इनकम डिक्लेयर करी है वो 8% से कम है ऑफ टोटल टर्नओवर, जितना भी आपका टोटल टर्नओवर था उसके 8% से भी कम आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, प्रॉफिट जो है वो आपका 8% से कम है, और आप 100% सेल्स करते हैं, इसको ऐसे समझिए, आप 100% सेल्स करते हैं और उसमें से आप अपना प्रॉफिट शो कर रहे हैं लेस देन 8%, नॉट इक्वल टू लेस देन 8%। अगर आप अपनी इनकम शो कर रहे हो यानी प्रॉफिट अगर आप अपनी ऐसे शो कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाएगा, और ये 8% की जगह हम 6% कर देंगे अगर आप डिजिटल रिसिट्स दिखाते हो तो, ठीक है। और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हैं, यानी कि 44 ADA सेक्शन का नाम है, और आप प्रोफेशनल हैं। बिजनेस वालों के लिए क्या टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़, प्रोफेशनल वालों के लिए क्या लिमिट होगी, ये होगी 50 लाख। 50 लाख है आपकी इनकम, ग्रॉस रिसिट्स 50 लाख से ऊपर हो गई है, या फिर आपने जो इनकम डिक्लेयर करी है वो 50% ऑफ ग्रॉस रिसिट से कम है तो भी, और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है 2.5 लाख रुपए, अगर उससे बढ़ गई है 2.5 लाख रुपए से, देखो ऐसे समझो
कि आपकी इनकम, जो आपकी इनकम है दैट इज मोर देन 2.5 लाख रुपीज, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 50% ऑफ योर टोटल ग्रॉस रिसिट्स। टोटल ग्रॉस रिसिट्स, आपकी टोटल ग्रॉस रिसिट से कम आप अपना 50% से भी कम अपना आप वो दिखा रहे हो कि इतना प्रॉफिट हुआ, टैक्स तो प्रॉफिट पर लगेगा ना, दैट इज वाई, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपका ऑडिट होगा सेक्शन 44 AE में, और आपके पास अप टू 10 हैवी गुड्स व्हीकल है, अप टू 10 हैवी गुड्स व्हीकल है तो आपको, और आपके ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्स लगता है तो आपको, और आप बेसिक टैक्स लिमिट से ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होता है, देखो अगर आप नॉर्मल आप टैक्सेशन रूल्स के एज पर जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस दैट अ पर्सन हैज टू फॉलो, यू हैव टू देयर आर कॉम्प्लेक्स taxation rules, there's a process of calculating your profit, फिर इस प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगाना है, राइट, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड इट इज अ टीडियस टास्क फॉर अ स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस पर्सन और स्मॉल प्रोफेशनल, दे फील कि बहुत ज़्यादा टीडियस है, प्रॉफिट निकालने में ही इतना टाइम लग जाता है कि मेरे को एग्जैक्टली मेरा प्रॉफिट क्या है। सो a boost was given to these small enterprises and was said कि ठीक है आप इतनी टेंशन मत लो, आप क्या करो, आपकी टोटल जितना भी टर्नओवर है, जितना भी आपका टोटल टर्नओवर है उसका कुछ परसेंटेज हर साल एज योर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। दैट मीन्स इफ यू अर्न 10 CR फॉर एग्जाम्पल इफ यू अर्न 10 CR तो 8% 10 CR का आपको उस फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है, उस 8% को एज योर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया आपने 8%, आपकी टोटल टर्नओवर का 8% आपने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब इस प्रॉफिट पे टैक्स दे दो, दैट्स इट, बस इतनी सी बात मांग रहे हैं। फिर आपको कुछ फालतू बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, आपको कुछ यू डोंट हैव टू, वो जो कुछ डेफिनेटली कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी बट नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी, बहुत ऑडिट की रेगुलेशंस आपको फॉलो नहीं करनी। ऑल यू हैव टू डू इज आपके टोटल टर्नओवर का कुछ परसेंटेज, जो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको एज प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, दैट्स इट, दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो अब इसका ऑडिट कैसे होगा इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो अगर आप सेक्शन 44 AD में कवर हो रहे हैं, यानी कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या पार्टनरशिप हैं, बट पार्टनरशिप में एक बात ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप में आप LLP नहीं होने चाहिए, यू शुड नॉट बी LLP। इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप हु इज नॉट LLP, और आप, तो आपकी जो इनकम है हमने कितनी डीम करी होगी, जो हम आपको बोलते हैं कि आपकी इतनी इनकम डीम होगी, प्रिजम्पटिव टैक्स में हम डीम कर लेते हैं कि टोटल टर्नओवर का 8% अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं प्रीडोमिनेंटली, और 6% अगर आप प्रीडोमिनेंटली नॉन कैश यानी कि डिजिटल, प्रीडोमिनेंटली अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो मैं मान लूंगी कि आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हैं तो आपको अपने टोटल टर्नओवर का 8% अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो, या फिर 6% अगर आप प्रीडोमिनेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं, इतना हम आपका प्रॉफिट मान लेंगे। वी विल डीम दिस एज योर इनकम, ये आपकी इनकम है तो इस पे आपको टैक्स देना है, करेक्ट। तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है या पार्टनरशिप है जो कि एक LLP नहीं है, और आप अपने टोटल टर्नओवर का 8% या फिर 6% डिक्लेयर कर देते हैं एज योर प्रॉफिट, एज योर इनकम, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आ जाते हैं। बट अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हैं, यानी कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, HUF है, पार्टनरशिप है, और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज करा हुआ है, यानी कि आप 8% या 6% अपना टोटल टर्नओवर का उसको एज प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो, और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर देता है,
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, योर टर्नओवर एक्सीड्स 2 CR, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। सो यू विल हैव टू हैव अ ऑडिट, टैक्स ऑडिट डन मैंडेटरली। या फिर इसकी सेकंड कंडीशन है कि आप क्योंकि प्रिजम्पटिव स्कीम में थे और अब आप 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हो अपने प्रॉफिट को, आप अपनी इनकम को 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हैं, और ये जो 8% और 6%, मान लीजिए आप 5% इनकम दिखाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने टोटल टर्नओवर का सिर्फ 5% एज इनकम दिखाना चाहते हैं। उस साल आपके बहुत खर्ची हो गए हैं, ठीक है। या तो आपकी 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर दी टर्नओवर, या फिर आपने अपनी इनकम 8% या 6%, किसी जिस भी केस में आप फॉल करते हैं, उससे कम दिखाई, और ये जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 5% इनकम दिखानी शुरू करी, तो और ये 5% इनकम टोटल एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स में, अगर वो उसको क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। समझ आया? सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 2 कंडीशन है। पहली, या तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गया, या फिर आप प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम में हैं एंड आप अपनी टोटल इनकम आपकी टर्नओवर से 8% या 6%, जिस भी केस में आप हैं, उससे कम शो करना चाहते हो, प्लस ये जो आप इनकम कम शो कर रहे हो ये बेसिक टैक्स लिमिट को क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपनी इनकम टोटल टर्नओवर की 5% है, टोटल टर्नओवर की मान लीजिए आपकी टोटल टर्नओवर की 5%, आप सिर्फ 5% एज इन प्रॉफिट डिस्क्लोज करना चाहते हैं,
अब उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, राइट। और ये जो 5% है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है। मान लीजिए जो 5% आपने डिस्क्लोज करा है दैट इज 6 लाख रुपीज एंड इट इज अबव बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी इन नेचर फॉर यू। गॉट इट? चलिए मैम, व्हाट इफ ना मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, ना मैं HUF हूँ, ना मैं पार्टनरशिप हूँ, मैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ और मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, देन यू विल फॉल अंडर सेक्शन 44 ADA। आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आप प्रोफेशनल हैं, देन यू विल फॉल अंडर सेक्शन 44 ADA। तो आपकी इनकम कितनी डीम होगी? क्योंकि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं, तो हम मान लेंगे कि ग्रॉस रिसिट्स का 50% आपका प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो एंड आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाते हो। बट अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए, अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए, या फिर आप अपनी इनकम जो डीम्ड इनकम है उसको 50% से कम दिखाना चाहते हो, 50% ऑफ टोटल रिसिट से कम दिखाना चाहते हो, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो बेसिक रूल है उसको नहीं फॉलो करना चाहते, और ये जो 50% से आपने कम टोटल इनकम दिखाई है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो भी आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो गया है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है मैम, व्हाट इफ हम ट्रांसपोर्टर हैं, व्हाट इफ हम ट्रांसपोर्टर है, अगर आप ट्रांसपोर्टर है बच्चे, तो आप फॉल करेंगे अंडर सेक्शन 44 AE, आप फॉल करेंगे अंडर 44 AE एंड वी विल डीम योर इनकम टू बी ₹1000 पर टन पर मंथ और 7500 पर व्हीकल। ठीक है, तो ऑडिट ओनली इफ इनकम नॉट डिक्लेयर्ड एज पर डीम्ड प्रॉफिट एंड टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पर आपकी टोटल टर्नओवर एक्सीड करने की कोई थ्रेशोल्ड नहीं दी हुई है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। बट अगर आप ऐसे अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं, अगर आप ऐसे अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, देन योर ऑडिट विल बी मैंडेटरी इन नेचर। प्लस ये अगर ये जो आप इनकम शो कर रहे हो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट डिफाइन है क्या? हाँ डिफाइंड है। अगर आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाते हैं, दिखाते हैं अपनी इनकम, और वो आप प्रेजेंटिव, जो प्रेजेंटिव में इनकम डीम थी वो नहीं दिखा रहे हो, वो नहीं दिखा रहे हो, तो आपको टैक्स कराना मैंडेटरी है। योर टैक्स ऑडिट विल बी मैंडेटरी इन नेचर। I'm hoping you enjoyed this. It was a very informative and very important topic for you all. Okay, so now let me take you to the next topics. आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या क्या हो सकता है टैक्स ऑडिट में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपने टैक्स ऑडिट का कंप्लायंस अच्छे से नहीं करा तो आपको क्या पेनल्टी लग सकती है फॉर नॉन कंप्लायंस। पहली बात तो इफ़ यू फेल टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, या तो आप CA से अपने अकाउंट्स ऑडिट ही नहीं कराएं, या फिर आप ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश नहीं करें। देखो यहाँ लिखा है, या तो आपने ऑडिट नहीं कराया या फिर आपने ऑडिट रिपोर्ट जो CA ने दी थी उसको अपलोड नहीं करी, फर्निश ही नहीं करी वो ऑडिट रिपोर्ट, जो सेक्शन 44 AB में करनी चाहिए। ठीक है, तो यू आर अट्रैक्टिंग अ पेनल्टी, you are attracting a penalty for yourself, that is 0.5% of your total sales or turnover or gross receipts, whatever the case may be, which can be up to rupees 1.5 lakh rupees. सोचिए, such a hefty penalty। आपको 0.5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसिट्स जो भी आपके बिजनेस में होती हैं, विच कैन गो अप टू रुपीज 1.5 लाख रुपीज। 1.5 का तो मतलब प्रोविजन ऐसा है कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आपको लग सकता है भाई। मतलब आप देखो कि मान लीजिए आपकी इनकम थी 10 CR टोटल टर्नओवर, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग रहा है, ठीक है, 10 CR आपकी टर्नओवर है, उसका 0.5%, उसका 0.5% दैट इज 10 CR। निकालो, सब लोग निकालो, अभी मेरे साथ सब निकालेंगे कि 10 CR का 0.5% कितना होता है, दैट इज 5 लाख रुपीज।
5 लाख रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज, मतलब 1.5 लाख तो ऐसे हैं जो आपको लगेंगे ही लगेंगे एनी हाउ, क्योंकि हमें पता है कि 2 CR से तो शुरू ही हो रहा है। 2 CR से तो 2 CR से तो आपका टैक्स, सॉरी 1 CR से, कमिंग बैक कि 1 CR से तो आपका टैक्स ऑडिट लिमिट, अगर बेसिक बिजनेस है आपका जहां आप कैश पे डीलिंग करते हो तो टैक्स ऑडिट तो आपके ऊपर अप्लाई एनी हाउ हो ही रहा था ना। 1 CR इज समथिंग जो हो ही रहा है आपका। अगर 1 CR एंड अबव आपने क्रॉस कर लिया है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई हो गया, राइट। उसका 0.5% ले लेती हूँ मैं, दैट इज 50,000, ठीक है। और अगर 1 CR होता तो 50,000 एंड मैक्स कितना है 1.5 लाख रुपीज, मतलब एटलीस्ट 50,000 तो आपको फाइन लगेगा ही लगेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। कम से कम 50,000 की पेनल्टी तो कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं। और यहाँ तो मैंने बहुत बेसिक सा आपको आपका टर्नओवर लिया, सिर्फ 1 CR का। टैक्स ऑडिट तो लगता ही है 1 CR अगर एक्सीड कर दिया तो 50,000 की पेनल्टी क्यों लगवानी है आपको अपने ऊपर? Why do you want to do this to yourself? Get yourself audited and furnish the report timely. That's it. That's all we are asking from you, right? चलिए, as an accountant, your role is crucial in facilitating a smooth and accurate इनकम टैक्स ऑडिट। जो इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है ये एक्यूरेट भी होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका डाटा, सीए आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा, राइट। इन कोऑर्डिनेशन विद योर सीए, अ डिटेल्ड चेकलिस्ट ऑफ व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रोवाइड करना है एंड आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है अपने ऑडिटर के साथ, ये हम आपको एक डिटेल्ड लिस्ट देने वाले हैं। सो देखिए, एक बात को ध्यान देंगे प्लीज, आपका काम सिर्फ अकाउंट्स तक नहीं है। योर वर्क इज नॉट जस्ट एंटरिंग जर्नल एंट्रीज, नो, योर वर्क इज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज, नो, योर वर्क includes documentation. Already मैं documentation की क्लास ले चुकी हूँ। Your work includes coordination with the auditor. It is something that you have to do. It is a part of your job profile. It is there in your JD. Job description में है आपके, even if अगर आप आपकी अपॉइंटमेंट हो इस वक्त नहीं बताया किसी ने, बट ये है, it is something which is inherent, है ही है, इसको आप नहीं निकाल सकते। हर अकाउंटेंट को ऑडिट कराना ही कराना है, सीए को आपको स्मूथ वर्किंग के लिए कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। सो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, सो इट विल बी सो मच इजियर फॉर यू एंड द ऑडिट विल बी सो मच स्मूदर। इट इज समथिंग विच विल हेल्प यू, योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट ईयर और बेटर काम होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर सब अच्छा चल रहा होता है चाहे अप्रिसिएशन शायद ना भी मिले, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि सब बढ़िया है, शायद आपको कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा, बट इतनी सी भी अगर गलती हो गई, इफ यू लैक इवन दिस मच, यू विल बी पॉइंटेड आउट। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू दैट। सब जब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता, बट अगर जरा सी भी गलती हो जाती है, एंड इफ एन ऑडिटर tells them, your bosses, you know that this is something which your accountant should have done or could have done, your job is at the stake. So that is why we are preparing you that ये सब काम आपको करना ही है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका काम ऑडिट होने से भी पहले ही शुरू हो जाएगा। आप वेट थोड़ी करोगे कि ऑडिट होगा तब मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आपका काम पहले ही शुरू हो जाएगा। सो प्री ऑडिट आपको क्या काम करना है, प्री ऑडिट आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सीए को? सो फ्रॉम योर एंड यू शुड कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल डेटा। एंड हाउ वुड यू डू इट? आप कैसे करोगे कलेक्ट और ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डेटा? क्रिएट योर ट्रायल बैलेंस एज ऑफ ईयर एंड, क्रिएट योर ट्रायल बैलेंस। कैसे करोगे? टैली में हो जाता है मैम सब कुछ, टैली में रिपोर्ट जनरेट होती हैं, वहां से आप अपना ट्रायल बैलेंस जनरेट करेंगे। ट्रायल बैलेंस जनरेट करने के लिए शर्त यह है कि सारी ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो टाइमली मैनर में एंड एक्यूरेटली।
टाइमली एंड एक्यूरेटली आप अपनी ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए, तभी तो ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। अगर इसी स्टेप पे प्रॉब्लम हो गई, अगर ट्रायल बैलेंस में ही एरर हो गया, तो आगे क्या काम करोगे? कुछ काम नहीं हो पाएगा आगे, राइट? लेजर्स बनाओ, चेक करो कि क्या मेरे सारे इनकम लेजर्स रिकॉर्डेड है, सारी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है, असेट्स लायबिलिटीज क्या सब रिकॉर्ड हो गई, सारे लेजर्स हर हेड में उनका डेटा कलेक्ट करो और उन्हें ऑर्गेनाइज करो। बैंक स्टेटमेंट्स को रेडी रखो, साथ ही साथ उनकी रिको बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बना लो साथ ही साथ, ताकि ऑडिटर को पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन पर्टिकुलर डेट्स पे, और इनकी क्या रिको है, राइट? कैश बुक और पेटी कैश रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाओ, प्लस साथ साथ उनकी एजिंग भी बनाओ। एजिंग मतलब कितने डेटर्स हैं जो 6 महीने से कम पुराने हैं, कितने डेटर्स या क्रेडिटर्स हैं जो 6 महीने से ज्यादा पुराने हैं, कितने 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, एंड सो ऑन। आपको एक एजिंग की लिस्ट बनानी है कि इनकी कितनी एज है। मान लीजिए कोई डेटर है 2 महीने पहले हमारा डेटर बना है, कोई पैसा है जो सिर्फ 2 महीने उधार जो हुआ हमने इसको दिया था 2 महीने पहले ही दिया था, ये हमारा 2 महीने से डेटर है। कोई पर्सन है जो हमारा 6 महीने से डेटर है, कोई पर्सन है जो हमारा 1 साल से डेटर है। ये सारी एजिंग बनानी मैंडेटरी है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेंटेन। फिक्स एसेट्स का रजिस्टर बनाइए। फिक्स एसेट्स के रजिस्टर में साथ ही साथ सारी की सारी परचेज डिटेल्स लगी होनी चाहिए, और उन पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ये भी आपको कैलकुलेट करके उसमें फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखना चाहिए। ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, कौन सी डेट पे कितने का परचेज करा, कौन से वेंडर से परचेज करा, उसकी पेमेंट कैसे हुई या नहीं हुई, उस पर्टिकुलर एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। ये सारी चीजें आपको फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखनी चाहिए। अपनी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखो, आपके पास इस वक्त पर्टिकुलरली कितना स्टॉक इन हैंड रखा है, मतलब कितना क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, उसको आपने कौन से मेथड से वैल्यूएट करा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या था आपका, ठीक है? आपका जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, जो आपकी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको आप वैल्यूएशन उसकी कैसे कर रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूएटिंग योर फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी फॉर योर इन्वेंट्री एज वेल। सो कौन सा मेथड अडॉप्ट करा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपको अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के वक्त देखना पड़ेगा दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फुल्ली अपडेटेड एंड क्लोज्ड। आपको अपनी बुक्स क्लोज भी करनी है। मैम क्लोज करनी है का मतलब, बुक्स को क्लोज करने का मतलब होता है कि आपने जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करी हैं, जो पीएनएल आइटम्स हैं, यू हैव ट्रांसफर्ड दोज आइटम्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपकी एंड से आपकी बुक क्लोज हो गई है, अब कोई भी एंट्री, कोई भी डाटा आप और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जौन सा आइटम जोन से हेड में जाना चाहिए आप ऑलरेडी उसे ट्रांसफर कर चुके हैं। जो एडजस्टमेंट्स होनी थी पूरे साल की आपने वो कर दी हैं, कुछ अप्रोप्रिएशन से आपने वो भी कर दिए हैं। यू आर डन विद योर पार्ट, अकाउंटिंग वाला पार्ट सारा खत्म हो गया है एंड यू हैव क्लोज्ड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नाउ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू प्री ऑडिट। ऑडिट शुरू होने से पहले ये सब काम आपको करके रखना है। ओके, देन आफ्टर दैट आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं प्री ऑडिट जो बनाना है। प्री ऑडिट पहला काम क्या करा आपने, कलेक्ट करा डाटा। दूसरी चीज प्री ऑडिट आपने Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, income tax कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है।
आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करा। क्या क्या ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं? ये क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं? ये जितनी भी आपकी पूरे साल में फॉर द ईयर, फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर आपकी जितनी भी सेल्स एंड परचेज की इनवॉइसेस है उनको आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जितने भी आपके पास एक्सपेंस के बिल्स हैं जैसे कि यूटिलिटीज़ के, रेंट के, ट्रैवल के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, आपको उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। उनकी रिसिट्स होंगी, कुछ वाउचर्स होंगे आपके पास, वो एक जगह लगे होने चाहिए। प्रॉपर फाइल शुड बी मेंटेन्ड फॉर सच। ओके, देन अ लोन एग्रीमेंट शुड बी देयर। अगर आपके पास कोई लोन है, आपने लिया है या दिया है, तो उसकी एक अग्रीमेंट्स की फाइल होनी चाहिए। उस लोन अग्रीमेंट्स की सपोर्टिंग डॉक्स में आपके पास EMI की स्टेटमेंट होनी चाहिए। जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हुई है उसकी डिटेल्स भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? लोन अग्रीमेंट्स जितने हैं, EMI स्टेटमेंट्स, इंटरेस्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लोन अग्रीमेंट फाइल में लगी होनी चाहिए। अगर आपने पूरे साल में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका प्रूफ एक अलग फाइल में होना चाहिए। आपकी जितनी भी GST रिटर्न्स थी थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो किसी भी नेचर की हैं, 1 है, 3B है, 2A है, 9 है, 9A है, ऑल थ्रू आउट द ईयर आपकी जितनी भी GST रिटर्न्स हैं, साथ ही साथ उनका रिको जो रिकंसिलेशन बनाई होगी आपने उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ की, यस माय GST रिटर्न्स आर रिकंसाइलिंग विद माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर एज पर माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो रिको भी साथ में लगी होनी चाहिए। जितनी भी TDS रिटर्न्स है आपकी पूरे साल की, फॉर्म 26Q, 26, 24Q, और उनके चलान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके चलान्स भी साथ में लगे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चलान से मुझे पता लग रहा है कि आपने पेमेंट करी है उसकी, राइट। जितना भी आपका पेरोल के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जितनी आपकी सैलरी की शीट्स हैं, अगर पूरे साल में कोई बोनस दिया है, आप PF काट रहे हैं, ESI काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें पेरोल के रिकॉर्ड्स में सपोर्टिंग डॉक्स इनके साथ लगे होने चाहिए, लाइन बाय लाइन आइटम में।
सो दैट ये सब डॉक्स हम किसको दे पाए, हम अपने ऑडिटर को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे पाए। आई एम टेलिंग यू, आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिट। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के लिए जाती थी। सबसे बढ़िया काम आपको, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से, वहाँ के अकाउंटेंट्स दे गिव यू वेरी गुड वर्क। Now I work with government and I work with private, both organizations. So I went for a PSU audit as well. तो PSU audit में हम, this is a prerequisite कि ये होना ही चाहिए, right? कि this is something you should do it. But PSUs में ऐसे नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो काम अपनी तरीके से तो वो भी बेस्ट दे रहे होते हैं, they are also doing their best, but because it's a PSU, their working style is a bit different, right? बट यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू एंश्योर कि जो वहाँ के अकाउंटेंट हैं आप उनसे एक रेपो क्रिएट कर रहे हैं। ओनली अकाउंटेंट्स कैन गिव यू ऑल दिस। हमें वहाँ पता होता था कि हमें कुछ भी चाहिए, हमें किससे लेना है, द ओनली अकाउंटेंट दैट इज आउट देयर, ओनली दैट पर्सन कैन हेल्प अस। सो because all these supporting documents are with the accountant, so the accountant plays a very major role। इसलिए accountant को बहुत ज़रूरी है कि वो सारी files maintain करके रखे, right? ये सब supporting docs आपको maintain करके रखने हैं। उसके साथ साथ आपको ऑडिट, प्री ऑडिट, आपको अपना सिस्टम और कंप्लायंस की एक रेप बना के रखनी है। मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपको इंश्योर करना है कि आपका सिस्टम कंप्लायंस के साथ है। जैसे आप डाउनलोड कर लो सारी रिपोर्ट्स अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, चाहे आप टैली यूज़ कर रहे हो, ज़ोहो यूज़ कर रहे हो, क्विक बुक्स रिपोर्ट कर रहे हो, कोई सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ से अपनी सारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लो। आप इंश्योर करो कि पूरे साल की बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। आप चेक करो कि TDS TCS के कोई प्रोविजंस तो नहीं है जो रह गए हो। GST की फाइलिंग चेक करो, एडवांस टैक्स पेमेंट चेक करो, ये सारी चीज़ें कंप्लायंस आप अपना चेक कर लो CA के आने से पहले। नाउ अब आपने ये सब काम कर लिया, ऑडिटर आपकी प्लेस पे भी आया भी नहीं है और आप ये सब काम कर चुके हैं अपने एंड से। अब ऑडिट टीम आपकी वर्क प्लेस पे आएगी और ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा। वंस देखो ध्यान दो बेटे, क्या होता है, आप पूरे साल एक फाइनेंशियल ईयर काम कर रहे होते हो, आप हर वक्त बिजी हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? अब आपका टैक्स ऑडिट की डेट क्या है, 30 सितंबर है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अभी ड्यू डेट हमने देखी थी ना, देखो 30 सितंबर है ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 है ना, ITR क्योंकि 31 अक्टूबर को जानी है। ऑडिट होगा तो 31 अक्टूबर, नहीं होगा तो 31 जुलाई। ऑडिट होगा तो कौन सी क्या डेट है, 30 सितंबर, राइट? तो 30 सितंबर को आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो ऑडिट कम से कम 1 महीना पहले शुरू हो जाएगा। अगस्त में मान लीजिए आपका ऑडिट चल रहा है, राइट? अब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ऑडिट करा रहे हो अगस्त 25 में, ऐसी होगा ना। अगस्त 25 में ऑडिट होगा और बाय 30 सितंबर ऑडिट फिनिश होके आपको अपलोडिंग हो जानी चाहिए, राइट? मान लीजिए जुलाई और अगस्त में आपका ऑडिट चल रहा है, 2 महीना लगा और ऑडिटर आपकी प्लेस पे आए हुए थे और वो चेक कर रहे थे, कंटिन्यूसली ऑडिट चल रहा था आपका। भाई जब ऑडिट चल रहा है, एक बात बताओ, तो क्या सिर्फ आप ऑडिट ही कराओगे या फिर जो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, क्या उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे? क्या उनको भी तो आप ही को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग का प्राइमरी काम तो रिकॉर्डिंग का ही है। एज एन अकाउंटेंट यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। तो इस वक्त आपके ऊपर डबल काम है। आपको अपनी उस फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिकॉर्डिंग भी करनी है, आपको ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर बिठाना है, आपको अपनी सारी सपोर्टिंग डॉक्स भी इनको देने हैं, आपको देखना इस बीच कुछ TDS रिटर्न भी फाइल करनी होगी, आपको GST रिटर्न भी फाइल करनी होगी, आपको बहुत सारे काम हैं जो आपकी JD में है, आपको वो करने हैं, राइट? तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऑडिट होने से पहले प्री ऑडिट ही अपना सारा काम करके खत्म कर लो। प्री ऑडिट ये चीजें अगर आपने कर ली तो अब ऑडिट इतना स्मूथली जाएगा आपका कि आपको पता है आपसे जितने भी डॉक्स मांग सकता है ना, आपने उसकी ऑलरेडी फाइल्स बना रखी हैं, उनको नंबर कर रखा है,
तो आप जितनी भी फाइल्स इनको देंगे, आपको पता है कि मेरी ये फाइल है और मैंने ये आगे सीए को दे दी है। अब आप अपने प्राइमरी जो काम है यानी कि रिकॉर्डिंग एंड रिटर्न फाइलिंग, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपको जो कोऑर्डिनेशन करनी है, अब आपको ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपने प्री में सारा काम कर लिया है। आपने पहले से ही प्री ऑडिट सारा काम अपने एंड से खत्म करके बैठे हो। नाउ द ऑडिट विल majorly the work of the account auditor now. You only have to provide support, क्योंकि आप अपने एंड से सारा काम करके बैठे हैं। अब आपको सिर्फ सपोर्ट देना है, राइट? चलिए, अब जैसे ही ऑडिट शुरू होगा तो आपको इनिशियली अपने सीए के साथ एक कोऑर्डिनेशन करनी है। वो कैसे करोगे? इनिशियली आपको सबसे पहले उनको बताना है कि आपके बिजनेस की प्रोफाइल क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके बिजनेस में। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाना उसको कि भाई हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर कौन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है। अगर पूरे साल में कोई चेंजेस हुए हैं शेयर होल्डिंग में, पार्टनर्स में या की मैनेजमेंट पर्सोनल में, ये सारी बातें भी आपको अपने सीए को सबसे पहले दिन ही बता देनी है। आपका पैन, टैन, जीएसटी नंबर, ऑडिट रिपोर्ट जो पिछले साल की थी, ये सारी बातें अपने आप को सीए को बता देनी है। फर्स्ट डे 1 सबसे पहले इनिशियली जो पहली बात आप करोगे ना, उससे आपको ये सब बातें उसको बता देनी चाहिए, राइट? अब आपका ऑडिट शुरू हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द ऑडिट आप कैसे असिस्ट करोगे सीए को? तो ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव टू असिस्ट द सीए। देखो, ड्यूरिंग द आपको ऑडिट रिपोर्ट जो देगा उसमें आपको एक या तो फॉर्म वो देगा 3CA या 3CB, डिपेंडिंग कि क्या आपका कोई और सा ऑडिट हो रहा है, यस तो ये देगा, अगर कोई और सा ऑडिट नहीं दे रहा तो वो आपको ये देगा, राइट? और एक फॉर्म है फॉर्म 3CD जो मैंडेटरी है। इन दोनों में से तो कोई एक मिलेगा, और ये जो है ये मिलना जरूरी है, मिलना ही है। एक ही आपको ये चीज मिलेगी और एक ही आपको ये चीज मिलेगी। जो फॉर्म 3CD है वो देना ही देना है, देना ही देना है, उसमें तो कोई कंजूसी नहीं है, राइट? वो तो देना ही देना, सोचना ही नहीं है, उसको तो देना ही देना है। जब चीज कोई देनी ही देनी है तो आपका सीए ये बनाने पे अपना फोकस करेगा, फॉर्म 3CD बनाना उसको। तो जो फॉर्म 3CD बनाना है उसको, उसमें जो जो डिटेल्स वो आपसे मांग सकता है वो डिटेल्स उसे दे दो। क्या क्या बता देगा वो? आपसे नेचर पूछेगा, लोन की डिटेल्स पूछेगा, रिलेटेड पार्टी की डिटेल्स पूछेगा, एम्प्लॉय वाइज सैलरी का ब्रेकअप पूछ लेगा, कुछ क्वालिटेटिव डिटेल्स पूछ लेगा। ये सारी चीजें आपको उसको एक्यूरेट, रिकनसाइल्ड और बैक्ड अप डॉक्यूमेंट के साथ देनी है। ये सब चीजें आपको एक्यूरेट होना चाहिए डेटा, रिकनसाइल्ड होना चाहिए डेटा और डॉक्यूमेंट से बैक्ड अप होना चाहिए। मैं आपको क्लॉज बाय क्लॉज बताती हूँ कि वो आपसे क्या मांग सकता है। वो क्लॉज 12 में आपसे मांग सकता है कि क्या आपकी बुक्स मेंटेन हो रही हैं, तो आपको उसको लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर लोकेशन देनी है। क्लॉज 12 में पूछा जाता है कि क्या बुक्स मेंटेन हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल हो रही हैं। तो आप सीए को क्या दोगे? अपनी बुक्स की एक लिस्ट दो कि हमारे यहाँ ये बुक्स मेंटेन होती हैं और उनकी क्या क्या लोकेशन है, ठीक है? अब क्लॉज 16 में वो आपसे मांगेगा कि क्या कोई अमाउंट है जो पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुआ है, क्या कोई ऐसा अमाउंट है विच इज नॉट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे बेड डेट्स हो सकती है, कैपिटल रिसिट्स हो सकती हैं। ये सारी बातें आप उसको एक लिस्ट दे दो। डिस्क्लोज आइटम्स लाइक कि कितना पूरे साल बेड डेट हो गया, कितने आपके कैपिटल रिसिट्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है? अब क्लॉज 18 में वो आपसे डेप्रिसिएशन मांगेगा, ठीक है? आप डेप्रिसिएशन का चार्ट जो आपने बनाया है वो उसके साथ शेयर कर दो। क्लॉज 21 में वो आपसे पूछेगा कि क्या कोई, क्लॉज 21 पूछता है कि क्या कोई एक्सपेंस है जिसे मुझे डिसअलाउ करना है सेक्शन 40 में या सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में। तो अगर आपने पूरे साल में किसी भी एक दिन, एनी वन डे, अगर आपने एनी डे you make cash payments, if you make cash payments यानी कि एक्सपेंस है आपका कोई भी, any expense which is made in cash,
above 10,000 rupees in one particular day, in any one particular day, अगर किसी भी एक दिन, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, if any expense is paid via cash in more than rupees 10,000 in one day, then it is disallowed. अगर आप किसी भी दिन, प्लीज यहाँ सब ध्यान देंगे, अगर आप किसी भी दिन, कोई भी एक दिन में किसी भी एक खर्चे के लिए 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट पे करना है, ठीक है, और वो रेंट था 11,000 रुपए का, तो गवर्नमेंट कह रही है तुम जितने भी एक्सपेंस, देखो गवर्नमेंट तो हमेशा शक की नजर से देखती है आपको कि आप जितने भी एक्सपेंस दिखा रहे हो सब झूठ है, सब झूठे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि तुम जितने एक्सपेंस दिखाओगे उतना प्रॉफिट कम, जितना प्रॉफिट कम उतना कम इनकम टैक्स, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने कोई भी एक भी दिन किसी एक खर्चे के लिए, जैसे कि रेंट, फॉर एग्जाम्पल रेंट, आपने उस खर्चे की पेमेंट कैश में करी है, तो हम कैसे मान लें कि वो खर्चा वाकई उतने रुपए का हुआ था। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चलो 10,000 रुपए तक तो हम मान लेंगे, 10,000 रुपए तक, यानी कि टिल अप टू 10,000 रुपीज वी विल कंसिडर कि ठीक है सच्चा खर्चा होगा, मान लिया, अलाउ कर देंगे हम तुम्हें। पर अगर तुमने 10,000 से ऊपर एक भी रुपए दे दिया कैश में एक दिन में किसी एक एक्सपेंस के लिए, मैं वो एक्सपेंस मानूंगी नहीं, डिसअलाउ कर दूंगी, मैं सोचूंगी झूठ बता रहे हो आप। 10,000 से ऊपर पेमेंट करनी है ना आपको, ऑनलाइन करो, चेक से कर दो, अकाउंट पे ही चेक से कर दो, ड्राफ्ट बना के दे दो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो, यूपीआई कर दो, नेट बैंकिंग कर दो, कुछ भी कर दो। बट अगर आपने एक दिन में किसी एक खर्चे के लिए 10,000 से ऊपर पेमेंट करी कैश में, तो हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। वी विल अज्यूम दैट यू आर लाइंग एंड दिस वाज नॉट अ ट्रू एक्सपेंस एंड वी विल डिसअलाउ इट। हम आपको 10,000 रुपए का भी बेनिफिट नहीं देंगे। आप कह रहे हैं मैम मैंने तो 10,100 रुपए की पेमेंट करी थी, 10,000 तक तो अलाउड है, 10,000 रुपए अलाउ कर दो, 100 रुपए डिसअलाउ कर दो। नो, योर होल एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, पूरा का पूरा आपका एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया क्योंकि तुमने कैश में पेमेंट करी थी। अगर तुम ये पेमेंट ऑनलाइन करते तो हम उसका एक ट्रांजैक्शन एक सपोर्टिंग डॉक होता, उसका एक ट्रेल होता उस ट्रांजैक्शन का, हम उसको ट्रैक कर पाते, राइट। क्योंकि तुमने कैश में वो एक्सपेंस कर दिया, अब मैं उस एक्सपेंस को कभी भी ट्रैक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आई विल डिसअलाउ इट। सो इफ यू वांट टू मेक पेमेंट इन on any given particular day, on any day, if you want to make payment for any expense that is above 10,000 rupees, you have to make that expense via account pay check or electronic means or a draft or anything that is non cash payment. You have to make that payment in other than cash mode. So we will allow it, otherwise we will disallow it. Simple. अगर मैम मैंने 9,999 रुपीज की पेमेंट कर दी कैश में, ठीक है अलाउ हो गई। 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी कैश में, अलाउ हो गई। 10,001 रुपए की पेमेंट करी, सॉरी डिसअलाउड, पूरी की पूरी पेमेंट डिसअलाउ, हम मानेंगे नहीं वो आपका एक्सपेंस है। यानी सोचो कि अगर वो 10,100 रुपए आपके टोटल प्रॉफिट में से इनकम में से कम होने वाले थे, फिर उतना ही आपको टैक्स कम देना पड़ता, अब आप वो माइनस ही नहीं होंगे। अब वो 10,100 रुपए आपके इनकम में से एज एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, अब आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो उस पर टैक्स ज्यादा है, सिंपल, राइट। सो इसलिए ये सेक्शन बनाया गया ताकि हम वाइट मनी को ट्रेस कर पाए। सो क्या कोई ऐसी पेमेंट है मैम अगर मैंने एक दिन में मल्टीपल अलग अलग खर्चों के लिए पेमेंट कर दी 10,000 या उससे कम, तो वो अलाउड है? हाँ, रेंट के नाम पे तुम 10,100 रुपए नहीं दे सकते, तुम रेंट के दे दो 10,000, तुम लेबर दे दो 10,000 की, तुम वाटर एक्सपेंस दे दो 10,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो 10,000 का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग एक्सपेंस 10,000 या उससे कम अलाउड है। किसी एक एक्सपेंस के लिए एक दिन में 10,000 से ऊपर आप नहीं दे सकते। रेंट के नाम पे आप 10,000 ऊपर से नहीं दे पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे, एक एक्सपेंस के नाम पे 10,000 से ऊपर पेमेंट करी कैश में, डिसअलाउड।
सो अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ऊपर की है किसी पर्टिकुलर एक एक्सपेंस के लिए, सो बेटर मेक इट वाया नॉन कैश मोड्स, ठीक है। तो अगर तो आपको एक स्टेटमेंट देनी है सीए को जिसमें आप सारी की सारी कैश पेमेंट्स दैट आर अबव 10,000 रुपीज वो आपको मार्क करके देनी है उसे। क्लॉज 23 बोलता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करी है तो वो बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक लिस्ट बनाओ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की और वो दे दो सीए को। क्लॉज 24 बोलता है कि आपने कुछ टीडीएस में डिफॉल्ट करा है क्या, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टीडीएस का कंप्लायंस स्टेटस दे दो सीए को। क्लॉज 28-29 पूछता है कि जीएसटी टर्नओवर रिको कहाँ है, तो उसके लिए आप जीएसटीआर 1 और 3B को मैच करके दे सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। क्लॉज 32 मानता है कि क्या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डेप्रिसिएशन है, उसके लिए आप प्रायर ईयर की असेसमेंट जितनी थी वो सारी आप सीए के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू शुड डू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एटीसी प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे जीएसटी, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत जरूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना जीएसटी के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें, क्यों ना रियल टाइम जीएसटीआर 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. अब आपको जब अब ऑडिट हो गया तो ऑडिट में कुछ क्वेरीज निकलेंगी, वो सारी क्वेरीज आपको ऑडिटर को रिजॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए। कुछ क्वेरीज है जो अक्सर आती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ अनयूजुअल एंट्रीज है, जैसे कुछ राउंड ऑफ है, कुछ प्रोविजन है, कुछ एडजस्टमेंट है, वो आपसे डेफिनेटली इसके लिए पूछेगा क्लैरिफिकेशन। लोन ट्रांजैक्शन के लिए वो आपसे जरूर कुछ डॉक्स मांगेगा। जितनी भी लार्ज कैश की पेमेंट्स हैं या रिसिट्स हैं वो उसके आपसे सोर्स मांगेगा, उसका यूटिलाइजेशन मांगेगा उसका, और उसकी रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करें आपने वो मांगेगा आपसे। वो जितने भी नॉन बिजनेस एक्सपेंस है डेफिनेटली मांगेगा। जितने भी रेड फ्लैग्स जो आपको डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी से आए हैं वो उसकी क्लैरिफिकेशन मांगेगा आपसे। आपको और क्या करना है? आपको रिको बनानी है। पहली चीज क्या करी थी? ड्यूरिंग ऑडिट आपने फॉर्म 3CD की मदद करी थी। दूसरी चीज ड्यूरिंग ऑडिट रिको बनाओ।
बैंक और बुक्स में रिको बनाओ, TDS में और 26 AS का रिको बनाओ, GST टर्नओवर का रिको बनाओ, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिको बनाओ, फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन शेड्यूल का आप रिको बनाओ। पोस्ट ऑडिट आपको क्या क्या करना है, ऑडिट हो गया खत्म, अब आपको क्या करना है, आपको आपके सीए ने एक फॉर्म 3CD दिया और या तो फॉर्म 3C या 3CB दिया, प्लीज रिव्यू करो उसको, रिव्यू इट बिफोर अपलोडिंग इट, रिव्यू इट, इंश्योर करो कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं, सपोर्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऑडिट रिपोर्ट को वेरीफाई करो, मैच करो कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच हो रही है या नहीं। फिर आखिरी में फाइलिंग करवानी है आपको, तो अपने सीए को मदद करो कि वो आपको अपलोड कर पाए ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है इसे अपलोड करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, सो यू शुड असिस्ट द सीए इन डूइंग सो। और जब आप वो आपका सीए इसको अपलोड कर देगा तो उससे एक्नॉलेजमेंट लो, सबमिशन की एक्नॉलेजमेंट लो और उसको डाउनलोड करके सेव कर लो। साइंड ऑडिट रिपोर्ट आपको हमेशा सेव करनी है, डिजिटल सिग्नेचर होने से मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। अपने फाइनल अकाउंट्स को और ऑडिट नोट्स को अपडेट कर लो, ठीक है। आपको ऑडिट फाइल्स को मेंटेन करके रखना है। क्या क्या मेंटेन करोगे, जितने भी वर्किंग पेपर्स थे, जितनी भी रिकॉर्ड्स थी आपकी, उसने आपसे ऑडिट क्वेरी पूछी, आपके क्या रिप्लाई थे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस कितनी गई हैं, प्रायर ईयर की टैक्स रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड ऑडिट फोल्डर में मेंटेन करनी चाहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। And now you should make sure that communication is the key. Timely exchange of documents is very much required. Quick clarification is something that CA is sorting from you. Transparency about any irregularities or doubts should be resolved. It should be addressed at all times. Now I am telling you that soft skills and what are the best practices for accountants. Please अपना communication बहुत strong रखें, आप timely update करें, क्लियर रिस्पॉन्सेज दे ताकि कुछ भी डिले नहीं हो और कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं जाए। टाइमली अपना सारा काम खत्म करें, आप इंश्योर करें कि जितनी भी डेडलाइंस हैं वो मीट हो रही हैं ताकि कोई भी पेनल्टी नहीं लगे आपके ऊपर। एक्यूरेसी मेंटेन करो ताकि कोई स्क्रूटनी ना लग जाए, कुछ डिसअलाउ ना हो जाए अंडर सेक्शन 143, राइट। अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, आपको पता होना चाहिए कि क्या कोई मैटर है जिसको आपको एस्केलेट करना है, कुछ अनयूजुअल आइटम हो सकता है जिसे आप एस्केलेट करना चाहते हैं सीए के साथ। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिए क्योंकि ये डाटा फाइनेंशियल नेचर का है और पर्सनल डाटा है, इसको एथिकली और सिक्योरली मेंटेन करिए प्लीज, नो डाटा शुड बी मिसयूज्ड, ओके। नाउ हाउ कैन यू स्ट्रीमलाइन दिस ऑडिट कोऑर्डिनेशन, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ ताकि ये जो ऑडिट कोऑर्डिनेशन है इसे आप स्ट्रीमलाइन कर पाए। प्लीज क्रिएट वन चेकलिस्ट फॉर योरसेल्फ, मैनुअल भी हो सकती है और ये वो एक्सेल में भी हो सकती है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए हैं सीए को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स देना, हैंड ओवर करना प्लस इन डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना भी तो है, क्योंकि ये तो आपका परमानेंट रिकॉर्ड है ना, ये तो आपका रिकॉर्ड है, ये कोई सीए का रिकॉर्ड थोड़ी है, तो आपका रिकॉर्ड है, इसको तो आपको मेंटेन करना है, फ्यूचर में काम आएगा। एक शेयर्ड फोल्डर बनाओ गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, कोलैबोरेशन के लिए। वीकली ऑडिट प्रोग्रेस की मीटिंग रखा करो, प्रोग्रेस मीटिंग रखो कि कितना ऑडिट हो गया है, आपको हमसे और क्या चाहिए, ताकि आप टाइमली मैनर में से खत्म कर सको। आप वर्जन कंट्रोल बनाओ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे और लेजर्स पे। दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू। So this is all from my side. I'll meet you again in the next class. The next class will be on your stats audit. अभी हमने income tax audit खत्म करा, अगली क्लास में हम stats audit खत्म करेंगे और जल्दी से मिलेंगे दोबारा, ठीक है। Till then, be a good human being and always remember whatever has happened. Focus on your present and your future. So don't indulge yourself in things which will not give you any benefit. Always control your time and your emotion and always try to be a better human being. Always work towards being a better version of your own self. I'll meet you again in the next class. Till then, bye, take care, see you. Signing off, this is Radhika Dua from Sharp Up Technology. Bye.